Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Currently, we are in chapter number 5, that is subsidiary book. In this particular chapter, we are learning how to prepare purchase book, purchase return book, sales book, and sales return book. Already, we have solved some of the questions on illustration basis, and today we are starting with illustration number 8. So, just read out the question first. Illustration number 8. Enter the following transaction in the books of Shreyas Traders in purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and details they have provided for July month. So we will start from 1st July 2018. What they are asking is purchased goods from Neil Kamal store rupees 33,000 at 5% discount. Half of the amount was paid immediately. So as you can see in purchase book, we record only credit transaction. Whenever there is transaction based on cash basis, we transfer it to cash book. So only 50% of the amount will be treated here in this particular purchase book. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग गुड्स परचेस का रिकॉर्ड करेंगे वो 50% का करेंगे, क्योंकि 50% हमने क्या कर दिया है, कैश में पे कर दिया है, राइट. So first of all, purchased goods from Nilkamal store 33,000 at 5% trade discount. तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं. हम लोग 33,000 माइनस 5% कर देंगे. कैलकुलेट 33,000 का 5%. How much it will be? So answer is 1,650. So after deducting 1,650, 33,000 minus 1,650. 31,350. ठीक है. अच्छा, अब इसमें से भी क्या हुआ, व्हाट दे हैव रिटन हियर, ट्रेड डिस्काउंट हाफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली. तो इसका जो 50% है वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट कम्स टू 15,807. we will take 15,807, 50%. सो ये सभी को समझ में आया क्या, कि सिर्फ यहाँ पर जो इफेक्ट है वो 15,807 का क्यों आएगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज डन ऑन कैश बेसिस, तो वो कैश बुक में जाएगा. परचेस में जो ट्रांजेक्शन आएगा दैट विल बी ओनली फॉर 15,807. So we will write here. So 50% will be, I made a mistake, 15,675. ठीक है, तो इसी ट्रांजेक्शन को हम ये अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे. गुड्स किससे परचेस किया था, फ्रॉम नीलकमल स्टोर. सो परचेस बुक में वी विल राइट डेट फर्स्ट, 1st July 2018. नेम ऑफ सप्लायर नीलकमल. स्टोर्स. Amount is
15,617.5. So done with transaction number 1. Next one, invoiced goods of rupees 27,750 to धवल ट्रेडर. इनवॉइस्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स सोल्ड. गुड्स सोल्ड. ठीक है. सो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे यहां पर 3 जुलाई 2018. नेम ऑफ द कस्टमर धवल ट्रेडर. धवल ट्रेडर. And amount is 27,750. Next one, 4th July 2018. Sonali invoiced goods of rupees 14,000 to us. That means what? We have purchased from Sonali. तो कहाँ आना चाहिए? Purchase book में आना चाहिए, isn't it? So we will write here Sonali on 4th July 2018. 14,000 to us at 4% trade discount as per our order dated 27th June 2018. ठीक है. तो 4% डिस्काउंट इस पे हम कैलकुलेट करेंगे. 14,000 minus 4%, that will comes to 13,440. 13,440. Next, sold goods of rupees 30,000 on credit to Saurabh and Sons, 7% trade discount. So on 9th July सेल्स बुक में आ जाएगा 9th July 2018. We will write Saurabh and Sons. Saurabh and Sons. Amount. So we will take 30,000 minus 7%. That will come as 27,900. 27,900. So done with 9th as well. 12th July. Sent a debit note to Nilkamal store. What do you mean by debit note? कब debit note send करते हैं? When there is a purchase return. When there is a purchase return. That means जो नीलकमल से हमने purchase किया था उसमें से goods हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं. And that is also on gross basis. ठीक है. So ये purchase return में हम यहाँ पर लिखेंगे on 12th July 2018. Debit note to Nilkamal store. So we will write here Nilkamal store. And the amount is on gross basis. Hence we will deduct 5% as mentioned in 1st July. ठीक है. 5% क्या होगा? माइनस होगा. तो 3,000 minus 5%. Calculate 2,850. 2,850. So we can write here on net basis. उन्होंने ग्रॉस में दिया था बट हमको हमेशा रिकॉर्ड किस पे करना है? नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है. व्हाट डू यू मीन बाय नेट बेसिस? डिस्काउंट जो हम लोग ने पहले अलाउ किया था या हमें जो अलाउ किया गया था वो माइनस करके हम लिखेंगे. ठीक है. सिमिलरली देखो 14th को हमने क्रेडिट नोट इशू किया. क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ है. क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न. नथिंग इज मेंशन, सो वी विल ट्रीट ऑन नेट बेसिस. ठीक है. सो 3,550 धवल ट्रेडर. So Dhaval trader
3,550 14th July 2018. After 14th July 19th received debit note from Sonali. सोनाली से डेबिट नोट मिला. व्हाट डज इट मीन? सोनाली के लिए परचेस रिटर्न, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न. ठीक है ना? तो सोनाली को चेक करेंगे, हमने सोनाली से परचेस किया था या सेल किया था? सोनाली का देखो पहले था सोनाली इनवॉइस गुड्स टू अस, तो हमने परचेस किया था. सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑन 4th देखो क्या हुआ था, सोनाली इनवॉइस गुड्स मतलब सोनाली से हमने क्या किया था, परचेस किया था. यहां पर लिखा है परचेस बुक में. तो नाउ व्हाट इट शुड बी, क्या लिखा है, रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली. सोनाली से डेबिट नोट हमें रिसीव नहीं होना चाहिए, एक्चुअली हमने जब परचेस किया था तो हमने डेबिट नोट इशू करना चाहिए, राइट? सो आई थिंक देयर इज एन मिस्टेक. यहां पर इंस्टेड ऑफ रिसीव्ड व्हाट यू विल राइट, इश्यूड डेबिट नोट टू सोनाली. सोनाली को हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इश्यू करेंगे. तो जस्ट मेक अ करेक्शन ओवर हियर, राइट, इश्यूड डेबिट नोट टू सोनाली. ये आप चेंजेस करेंगे यहाँ पर. गेटिंग इट एवरीवन? सो आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, यहाँ पर जो मिस्टेक है हमने उसको रेक्टिफाई किया. इश्यूड डेबिट नोट टू सोनाली, तो ये जो सोनाली है, सोनाली से हमने परचेस किया था. अब सोनाली को हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न. ठीक है, तो परचेस रिटर्न बुक में आप सोनाली लिखिए और डेट आ जाएगा 19th जुलाई 2018. अमाउंट इज ऑन ग्रॉस बेसिस, दैट इज 1000. सो 1000 देखो सोनाली से हमें क्या डिस्काउंट वगैरह मिला था, कुछ 4% का डिस्काउंट मिला था. तो 1000 पे भी हम क्या करेंगे, 4% लेस करेंगे. सो 960 रुपीज रिकॉर्ड होगा, 960. इफ यू वांट यू कैन राइट ओवर हियर ऑन नेट बेसिस. ठीक है, लाइक दिस. नेक्स्ट, सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स. सो सौरभ एंड सन्स, आप देखिए सौरभ एंड सन्स से हमने पहले क्या किया था, उसको सेल किया था. अभी क्या इश्यू हो रहा है, हम सेंड कर रहे हैं क्रेडिट नोट. ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न में जैसे धवल को हमने सेंड किया था 14th जुलाई के ट्रांजेक्शन में, वैसे ही 21 जुलाई को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर सेंड कर रहे हैं. तो सौरभ एंड सन्स को क्रेडिट नोट भेजा जा रहा है. व्हाट डज इट मीन, सौरभ एंड सन्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया नेट बेसिस पे. तो सेल्स रिटर्न में मेंशन करेंगे 4675. सो लेट अस राइट ऑन सेल्स रिटर्न बुक 4675. डेट 21st July 2018. Got it everyone? On next transaction 24th July 2018, purchased goods from Surabhi stores rupees 15,000 and sold the same to Prachi at a profit of rupees 25% on cost. ऐसा हमने illustration number 7 में भी किया था. सबसे पहले परचेस का ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, सुरभि स्टोर. सो परचेस बुक में आप लिखिए सुरभि स्टोर्स. डेट है 24th जुलाई 2018 और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा यहाँ पर 15,000. 15,000 में हमने परचेस किया. ठीक है, सिमिलरली सेल किसको किया,
प्राची, ठीक है, और 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पर सेल्स बुक में हम लिखेंगे, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, मैंने इंस्टेड ऑफ परचेस बुक परचेस रिटर्न में लिख दिया। मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको, ये मुझे परचेस बुक में लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक आई हैव मेड इट इन परचेस रिटर्न। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने सेल किसे किया, प्राची को किया, तो सेल्स बुक में आ जाएगा, वी विल राइट प्राची ओवर हियर, सेम डेट 24 जुलाई 2018, और 25% ऑन कॉस्ट मतलब 15,000 प्लस 15,000 प्लस 25%, सो टोटल आ जाएगा 18,750, 18,750। तो 25% हम ऐड करके सेल कर रहे हैं, 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट 25th, purchased goods of rupees 6,600 from सीमा स्टोर एंड पेड कैरियज। आपको पता है जो कैरियज होगा वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा, और रिमेनिंग जो 6,600 है वो परचेज बुक में लिखेंगे। सो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सीमा स्टोर, $6,600, date is 25th July 2018। नेक्स्ट प्राची रिटर्न गुड्स, अभी देखो प्राची को हमने क्या किया था, अभी अभी हमने सेल किया था, ठीक है ना, 25% कॉस्ट, प्रॉफिट पे 25% प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लेकर के हमने सेल किया था। अब जो प्राची है हमें गुड्स रिटर्न कर रही है, प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 एज दे वेर डिफेक्टिव एंड सेम वेर रिटर्न टू सुरभि स्टोर। अब यहाँ पर देखो रिवर्स ट्रांजेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग प्राची का जो गुड्स रिटर्न आया है उसको कहाँ कंसीडर करेंगे, सेल्स रिटर्न में, ठीक है। सो यू विल राइट ओवर हियर ऑन 27th जुलाई 2018 प्राची कितने का गुड्स रिटर्न आया, 5,000 का, राइट है। अच्छा, अब ये गुड्स सबको कहां से मिला था, सुरभि से मिला था, याद है आपको, हमने ये जो गुड्स परचेस किया था कहां से परचेस किया था, सुरभि से परचेस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न कर रहे हैं सुरभि को ऑन 27 जुलाई 2018। अच्छा, ध्यान किस बात का रखना है वो आप सोचिए, यहां पर सुरभि स्टोर से जब हमने गुड्स परचेस किया था तो 25% इंक्रीज करके हमने प्राची को सेल किया। अब प्राची ने तो हमको 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, ये जो 5,000 है आप ध्यान देंगे, यहां पर देखिए, लुक एट हियर, ठीक है ना, ये जो 5,000 है ये क्या है, ये है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैं आपको अगर क्लियरली समझाऊं, सबका ध्यान यहां पर, आई एम टेकिंग हियर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड देन सेल्स प्राइस और सेलिंग प्राइस यू कैन से, ठीक है ना। तो अगर कॉस्ट यहां पर 100 है एंड आई एम टेकिंग प्रॉफिट एट द रेट 25%, तो ये कितना हो जाएगा, 125, इजंट इट। ये तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आता है ना। कॉस्ट 100 है और 25% मैं ऐड करता हूं, तो मैं उसको कितने में सेल करूंगा, आई विल सेल इट फॉर 125। तो अभी जो 5,000 का कॉस्ट है ना वो हमारा 125 है, राइट है। सो मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा 100, हाउ मच, हाउ मच 100, तो यहां पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स व्हाट, 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। लिसन वंस अगेन, मेरा जो कैलकुलेशन यहां पर होगा वो होगा 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। इससे मुझे कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कीजिए 5,000 इंटू 100
डिवाइड बाय 125। तो कॉस्ट आ जाता है 4000। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा 4000। दैट मीन्स जब हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, किसको रिटर्न कर रहे हैं, जहां से हमने परचेस किया था, सुरभि स्टोर है ना, तो सुरभि स्टोर का यहाँ पर वैल्यू आएगा 4000। गॉट इट एवरीवन? इसमें किसी को जरा भी शंका होगी, डाउट होगी तो पूछिए। मैं आपको सिंपल तरीका भी बताता हूँ। जैसे देखिए ये जो 25% है ना, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ऑन कॉस्ट बेसिस, तो 25% ऑन कॉस्ट है, हम इसको बोल सकते हैं 1/4 ऑन कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं? 1/4 ऑन कॉस्ट। तो जब भी कोई चीज 1/4 ऑन कॉस्ट होती है तो वो सेल्स पे 1/5 हो जाती है। सेल्स पे कितनी हो जाती है? 1/5। तो आप सेलिंग का जो अमाउंट है ना 5000 डिवाइड बाय आप क्या कीजिए 5 डिवाइड बाय 5, तो आपको 1000 का प्रॉफिट उसमें दिखाई देगा, और 1000 का प्रॉफिट आप 5000 में से माइनस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4000। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। So star mark this particular transaction as on 27th April, sorry 27 July 2018, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न हुआ है ये ग्रॉस बेसिस पे हुआ है, और उसमें से हमको प्रॉफिट विड्रॉ करना है। ठीक है ना, और वो प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल्स। सो अकॉर्डिंगली आंसर इज 4000 ओवर हियर, और हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन ऑन 30th July 2018, purchased furniture for office use 23,000 from Bharat Furniture on credit। तो ऑब्वियसली असेट परचेस हो रहा है, तो हम जर्नल प्रॉपर में से रिकॉर्ड करेंगे ऑन 30th July 2018, व्हाट वी विल राइट ओवर हियर। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हमारा जो क्रेडिटर है भारत फर्नीचर, उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। और फर्नीचर के लिए क्या आ जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट इज 23,000 being furniture purchased on credit। Furniture purchased on credit। So here we have completed with all the transaction। Now we will take the total। परचेस बुक का टोटल आ जाता है 7,810। सेल्स सॉरी परचेस रिटर्न का मैंने टोटल बताया आपको। सेल्स बुक का टोटल है 74,400। फॉर परचेस बुक इट इज 50,715। and for sales return book it is 13,225। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन प्रॉपरली सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ये जो वर्किंग नोट है आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे फॉर 4,000 अमाउंट। सो नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग इज जर्नल प्रॉपर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कब रिकॉर्ड करते हैं। सो ट्रांजेक्शंस विच आर अदर देन कैश इन नेचर और परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है
that we record particularly in journal proper. ठीक है, सो कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? कोई ओपनिंग एंट्री होगी, एडजस्टमेंट वाली एंट्री होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी और ट्रांसफर एंट्रीज होगी, ये हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। अदर एंट्रीज में क्या आ गया? परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, देखिए यहां पर भी टर्म आपका क्रेडिट बेसिस पे यूज हो रहा है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड असेट ऑन क्रेडिट, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोपराइटर, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, loss of goods by fire or stolen or damaged in transit, goods distributed as free sample or charity, discount received and allowed on cash transaction। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी ये हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है वो जर्नल एंट्रीज जो हम पास करते थे उसकी तरीके का ही होता है। सो यहां पर देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1, कुछ बैलेंसेस हमें दिए गए, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर एंड क्रेडिटर, पास ओपनिंग जर्नल एंट्री, तो इसका ओपनिंग जर्नल एंट्री हम पास कर सकते हैं। असेट होगा वो डेबिट में आएगा और लायबिलिटीज क्रेडिट में आएगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो कैपिटल में चला जाएगा। ऐसी एंट्री हम लोग ने जर्नल एंट्रीज के समय पर पास की हुई है, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर इज द इजीएस्ट थिंग। मैं बोल सकता हूं कि ऑलरेडी हम लोग ने जो जर्नल बुक या जर्नल एंट्री सीखी हुई है उससे ही पूरा का पूरा ये रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको इन डिटेल में फिर मैं नहीं जा रहा हूं। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है, कुछ क्लोजिंग एंट्रीज है, कुछ ट्रांसफर एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में हम लोग पास कर सकते हैं। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चंस, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।